Assalamu alaikum students, it's me Dr. Shadab, your tutor for the code of 8613, which is research project. And today I'm going to discuss about what you are going to conduct in your research and how you will go towards your topic. And in this semester, Allama Iqbal Open University for the semester autumn 2020 have some rules as the school education is closed due to the COVID-19, and that's why University Allama Iqbal Open University have decided to start that research not to the students. They have shifted this research for the children, so that they have shifted this topic. Before that, they have just asked that you have to conduct the research on the students, बट इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने ये काम किया कि जो आप रिसर्च के लिए टॉपिक सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप स्टूडेंट्स की बजाय जो चिल्ड्रंस हैं या जो बच्चे हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं. दैट कुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन योर पार्ट ऑफ रिसर्च. तो सब्जेक्ट सबसे पहले थीम क्या आप लोगों का थीम फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट इज प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबींग, क्योंकि ये देखें थीम के अंदर भी स्टूडेंट्स की बजाय चिल्ड्रन को यूज किया गया है कि because we don't know when the school education will be open, and as you are conducting your research in the schools, in the colleges, in the universities, in the institutions, because this is education research, educational research, so that's why we will use the theme as promoting children's well-being for the semester autumn 2020. And they have university have some sub themes for the students. One is the children's self awareness and self efficiency, कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट की जा सकती है या उनके अंदर सेल्फ एफिशिएंसी को किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है, किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है. एंड द सेकंड सब थीम इज सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर्स, कि उनका जो रेगुलेटिंग बिहेवियर्स हैं toward the education, toward the sports activities, toward their physical activities, कि हमने उनको एजुकेशन की तरफ किस तरह से लेके आना है, या due to COVID-19 or they have some problems in physical education and online education rather than that of physical education, तो उसको हमने किस तरह से उनके जो behaviors को shift करना है. Then the third topic is local reasoning स्लैश प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपने उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखना है और उनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से आपके पास व्हाट यू हैव द पैरामीटर्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स. दैट इज लोकल रीजनिंग. जिस तरह आप लोग एमटीएस के टेस्ट देते हैं उसके अंदर एक लोकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का एक वो पूरा एक पैराग्राफ भी आता है जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपने सॉल्व करने होते हैं. दैट्स इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग और लोकल रीजनिंग. मेकिंग चॉइसेस, so students have to make their right choices at the right time. It's not important to make the right choice, but that is important right choice at the right time. कि आपने एक choice आपने देखा कि मैंने ये काम करना है but that was not the right time. तो right time and right choice, making choices at the right time of the student. For example, you have done your metric, then what you in which profession you want to go in after 8th class. You have to select the science, you have to select the arts, you have to select some other courses, and in after metric you have to select. That's the time for your whole career. So this is the making choices is most important topic and something, and I think on this topic most of the students have their research. And then focus on efforts rather than abilities. You have to focus the efforts than that of abilities. You have abilities, you don't work. You have efforts, that's mean you have start your work. कि आपने काम किया है, आपने एफर्ट की है, उसके अंदर रिसर्च पॉजिटिव वेज पे भी जाती है, नेगेटिव वेज में भी जाती है. वो क्या आप क्या करते हैं उसके अंदर आप उस रिसर्च को एक डिफरेंट वेज के अंदर कंटिन्यू करते हैं. इफ यू हैव सिग्निफिकेंट रिजल्ट, that's well and good. If you have non-significant result, go ahead publish. Why you publish the non-significant result? क्योंकि आपके बाद जो काम करेंगे वो रिव्यू करेंगे. जिस तरह आपने कोई काम करना है तो आप उसमें
क्या करते हैं, आप एक रिव्यू करते हैं कि जो प्रीवियस साइंटिस्ट है उन्होंने कौन सा काम किया है, इसके अंदर उनके कौन से रिजल्ट्स आए हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके जो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट को देख के वो बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे पहले काम हो चुका है, उसको नहीं करना चाहिए, या उन्होंने इस एस्पेक्ट में काम किया है तो दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ लर्न मास्टर rather than कंटेंट, कि आपने कंटेंट्स के ऊपर भी काम करना है। देन नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम, कि स्टूडेंट्स की जो सेल्फ एस्टीम है, जिस तरह हमने जो टॉपिक है, जो थीम है, दैट इज प्रमोटिंग स्टूडेंट चिल्ड्रंस वेलबींग, इसके अंदर ये सेल्फ एस्टीम। देन रिस्पेक्टिंग अदर्स, ये नहीं है कि आप बीइंग एजुकेटेड यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट बट यू डोंट रिस्पेक्ट द अदर्स। इसके अंदर टीचर्स की रिस्पेक्ट हो सकती है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट है। ये डिफरेंट सब थीम के अंदर आप डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देन रिस्पेक्टिंग अदर्स के बाद है सेल्फ कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर एंगर मैनेजमेंट, यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर, यू हैव टू कंट्रोल योर एक्टिविटीज, कि आपने एक्टिविटीज को किस तरह से कंट्रोल करना है, आपने अपने बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करना है, आपने अपनी एंगर मैनेजमेंट को किस तरह से कंट्रोल करना है। ऑन दिस एस्पेक्ट यू हैव लॉट ऑफ द टॉपिक्स फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एंड एरर, कि बच्चों के अंदर कुछ एबिलिटीज ये होती हैं कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है या किसी स्टूडेंट से कोई मिस्टेक हुई है, दैट ही और शी हैव सम कैपेबिलिटीज टू एक्सेप्ट दैट एरर। अगर आप स्टूडेंट्स के अंदर, आप टीचर्स के अंदर वो एरर्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटीज लेके आएंगे, दैट विल बी अ ग्रेट चेंज फॉर द नेशन। तो वो एक नेशन के लिए, एक कौम के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप इस टॉपिक को सिलेक्ट करके अपनी एरर्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अंदर आप डिफरेंट टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तब ये आपके कुछ टॉप थीम्स हैं, सब थीम्स हैं, इसके अंदर आपने अपने जो रिसर्च टॉपिक्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को पेज है, ये आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो रहा होगा, कि जिसके अंदर आप लोगों के जो थीम्स, सब थीम्स शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कि आपने जो रिसर्च वो कंडक्ट किस तरह से करनी है, हाउ डू यू हैव टू कंडक्ट दैट रिसर्च। तो जब आपने वो थीम सिलेक्ट कर लिया जो कि सबका सेम है, उसके बाद सब थीम है वो जो आपको दिए गए हैं सब थीम, उनके अंदर से आपने सब थीम सिलेक्ट किया। अब सब थीम सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है कि उसके अंदर से अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने सारी वो रिसर्च को बेस करना है, जिसके अंदर वो सारी रिसर्च को आपने कंटिन्यू करना है। तो दैट टॉपिक इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टूडेंट फॉर 3 to 4 days। मैंने अपने जो वर्कशॉप्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ 3 से 4 दिन लगा के ये टॉपिक्स फाइनल किए हैं, एंड वी हैव मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन सिलेक्टिंग द टॉपिक। क्यों? क्योंकि जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो आप जस्ट यही कहते हैं कि हम लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने सिर्फ वो टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना, आपने उस टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च कंटिन्यू करनी है। रिसर्च के बाद आपने उसकी मटेरियल मेथोडोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आपके कौन से इसके अंदर एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने ये टॉपिक एक सिलेक्ट किया है, तो जस्ट आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, आपने टीचर्स को सबमिट करवा दिया, ठीक है, लेकिन दैट्स अ रॉन्ग, वो एक कोई अच्छी आपकी वे आउट नहीं है, दैट इज द रॉन्ग पाथ और रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। क्यों? आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, आप एक पेज पकड़े, पेज के ऊपर उस टॉपिक को लिखे, आपने वो काम किस तरह से करना है, उसके अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकती हैं, आपने उस काम को किस तरह कंटिन्यू करना है, दैट इज नोन एज मटेरियल एंड मेथड। व्हाट यू हैव to use for your research, that is material, and how you will continue that research, that is the methodologies. And in research we have the manual, and that will be shown on your screen, and what will be the first page of the manual, which manual research project be at 1.5 year, यानी कि जिसके अंदर 1.5 साल या 2.5 साल के अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं इस्लामाबाद वालों पर यूनिवर्सिटीज के। तो कोर्स कोड है आपका 8613, जिसके अंदर सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, देन आपने अपना रोल नंबर लिखना है, उसके ऊपर रिसर्च रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपने अपना सेमेस्टर लिखना है, आपका 3rd सेमेस्टर है, आपका 5th सेमेस्टर है, आपका 4th सेमेस्टर है, रीजन आप लिखेंगे कि आपका गुजरांवाला रीजन है, रावलाकोट रीजन है, रहीमिया खान रीजन है, जो भी आपका रीजन होगा,
देन आप उसके अंदर अपना थीम लिखेंगे। रीजन कौन सा होता है आपका, जहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल हेड रीजनल ऑफिस होता है, वो आपका रीजन है। दैट फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, तो हमारा रीजनल ऑफिस फैसलाबाद होगा। अगर मैं गुजरांवाला से में हूँ तो मेरा रीजनल ऑफिस गुजरांवाला होगा। अगर मैं पिंडी में हूँ तो मेरा रावलपिंडी में होगा। इफ आई एम फ्रॉम रहीमिया खान तो रीजनल ऑफिस विल बी फ्रॉम रहीमिया खान। अगर मैं आजाद कश्मीर से हूँ तो मुजफ्फराबाद में होगा। अगर मैं कोयटा से हूँ तो कोयटा में होगा। अगर इसी तरह डिफरेंट जो रीजनल ऑफिस है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस जो है वो आपका रीजन होगा। तो देन थीम आपका वही आ जाएगा जो स्टूडेंट वेलबींग के ऊपर है। सब थीम आपने जो सा भी सब थीम सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिंग अदर्स है, एक्सेप्टिंग एरर्स है, वो जो भी आपने अपना सब थीम सेलेक्ट किया है वो आप अपने सब थीम के अंदर लिखेंगे, जो आपको भी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है साथ जो एक पिक्चर। तो देन आप अपना टॉपिक सिलेक्ट, जो भी आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है तो वो आप अपना टॉपिक लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। देन ये आपको शो हो रहा है कि जो कोर्स टीम है जिसने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है। देन कोर्स डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है कि जिस तरह एजुकेशन के अंदर हमने एक पूरा ये काम किया है, तो वो टीचिंग प्रैक्टिस है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये जो सारी रिसर्च है इसके अंदर हमारे पास लर्निंग आउटकम क्या होगी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। कि फॉर एग्जांपल यू आर टीचिंग टू अ स्कूल, यू आर टीचिंग टू द कॉलेज, यू आर टीचिंग टू द यूनिवर्सिटी, यू आर टीचिंग टू द अकेडमी, जहाँ पे भी कोई टीचिंग हो रही है, से फॉर एग्जांपल वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा टॉपिक सिलेक्ट होगा। देन रिव्यू करेंगे कि जो प्रीवियस उसके ऊपर काम हो चुका है कौन सा काम हो चुका है। देन हम उसके ऊपर एक डेवलप करेंगे कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। से फॉर एग्जांपल अवर टॉपिक इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो हमें बताएगा कि जिस चीज पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसका डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटे को एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस ऑफ डाटा के ऊपर हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। से फॉर एग्जांपल स्कूल्स ऑफ कराची दे हैव लैक ऑफ टीचर, जिनके उनके अंदर स्टूडेंट टीचर रेशियो कम है। स्कूल्स ऑफ फैसलाबाद दे हैव, हमने जो भी स्कूल सिलेक्ट किए होंगे उनके अंदर बताएंगे कि इसके अंदर लैक ऑफ टीचर्स है। तो से फॉर एग्जांपल हम किसी और स्कूल की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो टीचर्स की कमी है, किसी स्कूल के अंदर वॉशरूम्स की कमी है। तो जिस भी प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई किया होगा उसको हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि हम यहाँ पे ये काम 2 क्लासरूम अगर ऐड कर देते हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है। अगर इसके अंदर हम 3 वॉशरूम ऐड कर देते हैं तो सफिशिएंट है। अगर स्कूल के अंदर 4 दीवारी आ जाती है तो वो आप क्या है कि आपने अपनी जो रिसर्च कंडक्ट की है उसके ऊपर आप कंक्लूजन या कुछ ड्रा करते हैं। लास्ट यू हैव टू यूज द एपीए स्टाइल, यूज एपीए मैनुअल स्टाइल फॉर द रेफरेंस राइटिंग। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एपीए स्टाइल क्या होता है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, लर्निंग मेथोडोलॉजीज के, टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या है कि आपने जो अपनी टीचिंग की है उसके अंदर आपने कौन से मेथड्स यूज किए हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों भी वर्कशॉप्स में भी सारी ये चीजें कवर की हैं। देन हमने अपने टॉपिक्स बड़े ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। ये मैं आप लोग को अभी दोबारा बार बार बता रहा हूँ। राइटिंग रिपोर्ट के अंदर आपने अपने बड़ा कंसाइज, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि नटशेल, अपने बड़े थोड़े से पेजेस के अंदर आपने वो अपनी सारी रिसर्च को बताना होता है। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि आपने वो पेजेस भरते जाना है, पेजेस भरते जाना है, उसके अंदर काम की चीज कोई ना, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए इन योर रिसर्च, इन योर मैनुअल, इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देयर शुड नॉट बी एनी रेपिटेशन, कि आपने ये नहीं है कि एक चीज को बार बार रिपीट करते रहना है। रिपोर्ट मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपने इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना है, अपनी लोकल लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज के अंदर नहीं आपने लिखना। आपने उसके अंदर कॉपी नहीं करनी, आपने इसको अंदर अपनी राइटिंग यूज करनी है। बिकॉज दे हैव वी हैव यूज द टर्निटिन सॉफ्टवेयर which is used to identify the plagiarism। के फॉर एग्जांपल आपने गूगल से कोई चीज निकाली, कॉपी करके पेस्ट कर दी, तो वो सारी बता देता है कि ये आपने कहाँ से उठाई है, वो प्लेजरिज्म के अंदर आ जाती है, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इफ यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग अ टीचर तो आपको सारी वो प्रॉब्लम्स का पता होता है। बीइंग अ टीचर यू आर वेल अवेयर। उसके बाद असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे उसके अंदर फिर उसको असेस किया जाएगा। वो यूनिवर्सिटी के आप अपने रीजनल ऑफिस में भी सबमिट करवाएंगे, तो उस मैनुअल के आप अपने सुपरवाइजर के साइन करवाएंगे, वो आपकी सबमिट होगी। फिर उसके अंदर उसको असेस किया जाएगा कि आपने जो रिसर्च किया
आया वो जेन्युइन भी है, वो आपने की भी है, या आपने किसी से कह के करवा ली है, या आपने किस तरह वो रिसर्च की है, वो मेथोडोलॉजीज भी ठीक है। अगर आपने खुद की है तो आपके सुपरवाइजर ने उसके अंदर कितनी आपकी इंप्रूवमेंट की, वो सारी चीज़ें उसके अंदर असेस की जाएंगी। और जो आपकी वर्कशॉप है उसके अंदर आपकी 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आपकी 80% अटेंडेंस नहीं होती तो यू विल बी कंसिडर्ड एज फेल इन योर वर्कशॉप। तो देन नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक अप्रूवल फॉर्म। टॉपिक अप्रूवल फॉर्म के अंदर आता है सबसे पहले वही नेम ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका जो प्रोग्राम है बी एड 1.5 ईयर है और 2.5 ईयर, देन आपका सुपरवाइजर नेम, आपका जो थीम है, सब थीम है, टॉपिक, ये आपने अपनी वर्कशॉप के थर्ड डे के अंदर सबमिट करवाना होता है। जो आपके जो वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर हैं वो साइन करते हैं, रिसोर्स पर्सन जो थे वो साइन करते हैं दोनों। देन आप जिस वर्कशॉप पे दूसरे दिन करते हैं, थर्ड डे करते हैं, फोर्थ डे करते हैं, वो आपकी अप्रूवल की डेट साथ लिखी हो जाती है, आ जाती है। उसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बेसिकली होता क्या है कि आपने जो भी रिसर्च की है आप उसके अंदर ये डिक्लेयर करते हैं कि दैट इज टोटली रिसर्च बिलोंग्स टू योर एफर्ट्स, कि आपने वो सारा काम किया, दैट वाज नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर इन द प्रीवियसली। तो आई, उसके बाद आप नाम लिखते हैं, डॉक्टर रसाना, रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट ऑफ आपका 1.5 ईयर और 2.5 ईयर है। उसके बाद अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने के बाद आप अपना कंडेम करते हैं कि ये सारा काम आपका अपना ही है। देन आप नीचे साइन करते हैं, आप उसके अंदर डेट लिखते हैं और सिग्नेचर करते हैं अपने। देन रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म, आप यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म देती है कि आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है उसकी अप्रूवल भी आपको लेनी पड़ेगी। उसके अंदर आप अपना टाइटल लिखते हैं, सबमिटेड बाय, अपना स्टूडेंट नेम लिखते हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम 1.5 जो भी आपका आता है। उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर से साइन करवाते हैं, क्योंकि आपका सुपरवाइजर आपको अलो करता है कि दैट यू हैव डन इज गुड, इज सफिशिएंट, इज ओरिजिनल। वो आपकी सारी चीजें जो है वो सफिशिएंट है। नेम ऑफ सुपरवाइजर आता है, फिर जिस तरह आपने अप्रूवल लेनी है इसी तरह आपने सुपरवाइजर से भी अप्रूवल लेनी है कि मेरा ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट का या ये जो काम है दैट इज रेडी फॉर सबमिशन। उसके बाद आपका का जो रीजनल डायरेक्टर है उसके साइन आएंगे। देन अब आपका जो मैनुअल है वो स्टार्ट हो जाता है कि आपका जो मैनुअल है, जो आपकी जो थीसिस, जो जो रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो स्टार्ट हो रही है। उसके अंदर आपने सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ स्कूल की या जिस जगह पे आपने रिसर्च कंडक्ट की है। उसके बाद आपने बताना है कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन द प्रोजेक्ट, कि आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट किया उसके अंदर आपने किन स्टूडेंट्स को ऐड किया है, किन किन प्रोफेशनल्स को ऐड किया, इसके आपके पास 10 नंबर होंगे। ये आपने 4 से 5 पेजेस की ये लिखनी है। देन आपने नेक्स्ट आके आपने क्या करना है, अपना थीम, सब थीम, अपना टॉपिक बताना है। टॉपिक के बाद आपने बताना है कि व्हाई डू यू यूज दिस सब टॉपिक एंड व्हाई यू यूज दिस सब थीम एंड टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो ये आपके अपने 10 नंबर होंगे। इसके अंदर आपने ये भी बताना है कि आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई किया, ये आप लोगों की स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा होगा। तो देन आपके पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आता है वो दैट इज, मैं भी आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आपने ये डिस्कशन अपने कुलीग्स के साथ की, क्योंकि आपने कुलीग्स के साथ डिस्कशन करनी है। वो आपको बताएंगे कि ये आपका जो टॉपिक है दैट वाज गुड, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने ये सारा काम करना है। तो यहाँ आप सीनियर से बात करेंगे, टीचर से, स्टूडेंट से, सुपरवाइजर से, वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जिसके 5 नंबर होंगे। देन क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके है व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग, कि आपने रिव्यू भी किया कि ये काम वाकई होने वाला है। आपको बुक से रिव्यू करेंगे, लिटरेचर से रिव्यू करेंगे, वेबसाइट से रिव्यू करेंगे। इसके आपके 10 नंबर होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 नंबर हो जाएंगे जो आपने रिव्यू किस तरह से किया है। तो रिव्यू आपने बड़े ध्यान से करना है कि आज के अंदर आपके जो टॉपिक है उसके अंदर कितनी ओरिजिनलिटी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने अपने मेजर वेरिएबल्स बताने हैं कि जो चीजें चेंज हो सकती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपने डाटा लेना है। उसके कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से काम किया, अपनी कोई डेफिनेशन देना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं लिटरेचर के अंदर, उसके भी 5 नंबर होंगे। इसको कहते हैं की ऑफ योर प्रोजेक्ट स्टडी, इसको मटेरियल मेथड भी कह सकते हैं कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है ना, तो उसके 5 नंबर होंगे। देन आपके नेक्स्ट 5 नंबर होंगे कि आपने जो काम किया उसके अंदर से आपने अचीव क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, या आपकी पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, आप उसके अंदर करना क्या चाह रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम उनको कहते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, इन्वायरमेंट है, कौन सा आपका एजुकेशनल
गोल जो है उसको आप अचीव करना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट के बेस पे। देन हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करेंगे, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आपने डाटा कलेक्शन किस तरह से करनी है, उसके ऊपर स्टैंड लगा के आप उस डाटा को सॉल्व किस तरह से करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको हम कह सकते हैं। इसके भी 10 नंबर होंगे। देन व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू यूज टू कलेक्ट द डाटा, आपने किस तरह से वो डाटा की कलेक्शन करनी है, और हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप, कि आपने वो डेवलप करने हैं या कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। इसके 5 नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है, रेटिंग स्केल करना है, आपने बच्चों से इंटरव्यूज लेने हैं, स्टूडेंट से उनका होमवर्क करवाना है या पोर्टफोलियो टेस्ट करने हैं, जो भी आपने अब उसके अंदर यूज किया है इंस्ट्रूमेंट, वो आपने बता देने हैं कि डाटा आपने किस तरह से कलेक्ट किया है, ठीक है ना। देन आपने बताना है 5 नंबर, इसके 10 नंबर होंगे। आपने एक पूरा एनालिसिस करना है डाटे का, कि आपने फॉर एग्जांपल बच्चों से पूछा कि आपके टीचिंग मेथड कैसा है, उसका भी आपने वो रेटिंग स्केल बना दी है 1 से लेके 5 तक, गुड बेटर बेस्ट इस तरह करके। तो आपने अपनी फाइंडिंग्स बतानी है, कंक्लूजन्स कौन से हैं, आपकी कंक्लूजन्स क्या निकले हैं इसमें से ना, व्हाट आर द फाइंडिंग्स। इसके 10 नंबर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको भी आपने 5-6 पेजेस का बनाना है। देन आपके पास जो नेक्स्ट है समरी ऑफ प्रोजेक्ट। समरी क्या होता है कि आपकी पूरी डिटेल है, लेकिन आपने 4 से 5 पेजेस के अंदर अपना पूरा जो थीसिस, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसको आपने समराइज करना है। उसके 5 नंबर हो गए। और इसके अंदर आपने कंडक्ट किस तरह से की, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी फाइंडिंग क्या है, आप रिकमेंड क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने समरी में बतानी होती हैं। तो देन आपकी 11 नंबर है हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस से आपने सीखा क्या है, आपकी अपनी जो सेल्फ इसके अंदर रिफ्लेक्शन क्या है, कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके 10 नंबर है, और इसको आपने बड़े ध्यान से लिखना है। ये आपकी अपनी तरफ से, ये दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ रिसर्च, दिस इज व्हाट यू गेन फ्रॉम दैट रिसर्च, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल, जो आपने रिसर्च की है बीइंग अ टीचर, इसने आपके प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर क्या चीज ऐड की। इसके 5 नंबर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास आज के टॉपिक्स के अंदर। देन लास्ट इज लिस्ट ऑफ बुक्स वेयर यू हैव कलेक्ट दैट डाटा, इसको हम कहते हैं एपीए मैनुअल, जिसको 6th एडिशन के अंदर है। इसके 5 नंबर है। जो एपीए स्टाइल का फॉर्मेट है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आपको ये सारी चीजें स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी। एपीए वेबसाइट आपको लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आप लोगों को अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333-820-2149 820-2149 के ऊपर, या मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर शादाब शौकत के नाम से, या मुझे इस यूट्यूब चैनल के नीचे से जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।